آج ہم نے اسپین پر ریئیکشن ویڈیو بنائی ہے، تو آپ دیکھیں اور لائک سبسکرائب بھی کریں۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو یورپ کے ایسے ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں جہاں بڑی تعداد میں پاکستانی اور انڈین آباد ہیں۔ ایسا ملک جہاں سلطنت عثمانیہ سے بھی لمبی 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت تھی۔ ایسا ملک جو تاریخی مقامات سے بڑا ہوا ہے۔ جی ہاں، آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں اسپین کی۔ اسپین کیسے جا سکتے ہیں؟ اسپین کے حالات کیسے ہیں؟ غیر قانونی لوگوں کو قانونی بنانے کی کیا پالیسی آئی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کیسے مسلمانوں نے اسے فتح کیا اور کیوں 800 سال بعد سلطنت ختم ہوئی۔ آج اس ملک کے کون سے شہر سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں، یہ سب کچھ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ چلے اب نکلتے ہیں اسپین کے ایک شاندار سفر پر۔ اسپین کا آفیشل نام کنگڈم آف اسپین ہے، جو جنوب مغربی یورپ میں واقع ایک خوبصورت ملک ہے جس کی کل آبادی 4 کروڑ 95 لاکھ کے قریب ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کے 32ویں نمبر پر آتا ہے۔ اسپین کا کل رقبہ 5,05,000 مربع کلومیٹر ہے، جو رقبے کے لحاظ سے دنیا کے 51 نمبر پر آتا ہے۔ اس ملک کے 82% لوگ شہروں میں رہتے ہیں، جبکہ صرف 18% لوگ گاؤں میں آباد ہیں۔ اسپین جغرافیائی لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اسپین کا بارڈر پرتگال، فرانس، جبرالٹر، اندورا اور سمندری فاصلے پر موروکو سے لگتا ہے۔ اسپین معیشت کے لحاظ سے یورپ کی بڑی معیشتوں میں شمار ہوتا ہے۔ اسپین کی جی ڈی پی 1.90 ٹریلین ڈالر ہے اور یہاں کے لوگوں کی سالانہ آمدنی $38,000 کے قریب ہے۔ اس کی معیشت دنیا کی 16ویں بڑی معیشت ہے۔ آج کا اسپین دنیا کے جدید اور ترقی یافتہ ممالک میں آتا ہے۔ اسپین تاریخ سے بڑا ہوا ملک ہے۔ اس کی خوبصورتی کا ہر کوئی دیوانہ ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ دنیا میں دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ دیکھے جانے والا ملک اسپین ہے، جبکہ پہلا نمبر فرانس کا ہے۔ اس ملک کی معیشت کا دار و مدار زراعت، سروس سیکٹر اور سیاحت پر ہے۔ سیاحت ملک کی معیشت کا سب سے اہم حصہ ہے۔ اسپین کی تاریخ 800 سال تک مسلمانوں سے بھی جڑی ہے، جس کے بارے میں بہت کم بات کی جاتی ہے۔ اسپین کے ساحل، یہاں کے لوگوں کا کلچر اور ان کی مہمان نوازی ٹورسٹ کو اس ملک میں آنے پر مجبور کرتی ہے۔ اگر بات کریں مذہب کی تو 55% کیتھولک، 39% جن کا کوئی مذہب نہیں، 3% مسلم اور باقی دوسرے مذاہب کے لوگ آباد ہیں۔ اسپین کا دارالحکومت میڈرڈ سٹی ہے، جو ملک کا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ شہر اسپین کے وسط میں واقع ہے۔ دوستو، یہاں کے لوگ خوشی سے زندگی گزارتے ہیں اور ان کی خوشی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے فٹ بال۔ اسپین کے لوگوں کو فٹ بال کا شوق جنون کی حد تک ہے۔ اسپین کے لوگ ہر کام محنت سے کرتے ہیں، لیکن دوپہر کے وقت کھانے کے بعد آرام ضرور کرتے ہیں۔ اسے سیسٹا کہا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ روایت چھوٹے شہروں میں کی جاتی ہے۔ اسپین میں باقی یورپ کی نسبت رہنا سستا ہے۔ ایک شخص کا رہنے کا خرچہ 1300 یورو سے 1800 یورو کے قریب ہے۔ اگر بات کریں مہنگائی کی تو اسپین کا سب سے مہنگا شہر بارسلونا ہے اور دوسرے نمبر پر میڈرڈ آتا ہے۔ دوستو، اگر آپ اسپین میں آنا چاہتے ہیں یا دوست اسپین میں موجود ہو تو وہ ہمیشہ یہی کہے گا، یہاں مت آنا، حالات بالکل ٹھیک نہیں ہیں۔ لیکن حقیقت میں حالات اتنے بھی برے نہیں ہوئے، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اسپین میں 2026 کے مطابق 80,000 کے قریب پاکستانی آج بھی رہتے ہیں، جبکہ انڈین کی تعداد 70,000 کے قریب ہے۔ پاکستانی یہاں پڑھنے کے غرض سے بھی آئے ہیں اور کاروبار بھی کرتے ہیں۔ زیادہ تر پاکستانی بارسلونا شہر میں رہتے ہیں۔ آج ان کے اپنے سٹور موجود ہیں، جیسا یہ اوان سٹور۔ اس کی پورے شہر میں بہت سی برانچز بھی ہیں۔ اسپین میں بولے جانے والی زبان اسپینش ہے۔ اس ملک میں انگلش سے زیادہ اسپینش کو ترجیح دی جاتی ہے، اس لیے آپ کو اسپینش زبان کو سیکھ کر آنا پڑے گا۔ دوستو، اسپین نے جنوری 2026 میں ایک پالیسی بنائی جس میں 5 لاکھ غیر قانونی لوگوں کو قانونی کیا جا رہا ہے۔ اس میں شرط یہ ہے کہ 5 مہینے سے زیادہ آپ کا یہاں سٹے ہو۔ اس کوٹے میں 3000 غیر قانونی پاکستانیوں کو بھی لیگل کیا جا رہا ہے۔ دوسرا سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اسپین کیسے جا سکتے ہیں۔ ایک طریقہ ہے وزٹ ویزا، جس کے لیے آپ کو 30 لاکھ کی سٹیٹمنٹ دکھانی ہوگی اور 70 دن میں ویزا لگ کر آئے گا۔ ویزا کی فیس 80 یورو کے قریب ہے۔ ورک ویزا پر جانے کے لیے آپ کو پہلے جاب حاصل کرنا ہوگی۔ کچھ ویب سائٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اسپین شینجن ممالک میں آتا ہے، اس لیے آپ کو اس کے لیے شینجن ویزا لینا ہوگا۔ لیکن باقی یورپ کے ممالک کی نسبت اس کا ویزا لگنے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں۔
दोस्तों आपको सुनकर हैरानी होगी, स्पेन में सालाना टूरिस्ट 9 करोड़ 70 लाख के करीब आते हैं। ऐसी क्या खूबसूरती है, चलें अब आपको भी दिखाते हैं। पाकिस्तान से स्पेन की टिकट 2,90,000 तक आसानी से मिल जाती है। टूरिस्ट सबसे पहले स्पेन के कैपिटल मैड्रिड सिटी में जाते हैं। यह है मैड्रिड का खूबसूरत और जदीद एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के नीचे ही ट्रेन स्टेशन मौजूद है। इसकी टिकट 3.60 यूरो की है। T4 ट्रेन में बैठकर आप सिटी सेंटर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद आपको देखने को मिलेगा साफ सुथरा, खूबसूरत और तारीखी इमारतों वाला शहर। इस शहर में हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर सबसे ज़्यादा नजर आएगा। मैड्रिड की तारीखी गलियां बहुत खूबसूरत हैं। एक से बढ़कर एक खूबसूरत बिल्डिंग आपको नजर आएगी। ये स्पेन का इक्तिसादी मरकज़ भी है। यहाँ मुख्तलिफ कंपनीज के हेड ऑफिस भी मौजूद हैं। ये शहर आलमी सतह पर ट्रेड का मरकज़ भी है। स्पेन को यूरोप का पाकिस्तान भी कह सकते हैं। जैसे पाकिस्तान से अरब ममालिक के लिए लोग काम करने के लिए जाते हैं, ऐसे ही स्पेन से लोग पूरे यूरोप में काम के लिए जाते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं, दुनिया में सबसे लंबी उम्र रखने वाले लोग जापान के हैं, जिनकी औसत उम्र 84 साल है। लेकिन स्पेन भी इसके करीब है। यहाँ के लोगों की औसत उम्र 82 साल है। इससे भी अंदाज़ा होता है कि यहाँ के लोग खुद को खुश रखते हैं। मैड्रिड में मौजूद रॉयल पैलेस ऑफ मैड्रिड यूरोप का सबसे बड़ा महल है, जिसमें 3000 से ज़्यादा कमरे हैं। इसको देखने की टिकट 12 यूरो की है। इस शहर का सबसे फेमस चौक प्लाजा मायोर है। बादशाहों के दौर में यहाँ लोगों को सज़ा दी जाती थी, लेकिन मौजूदा दौर में क्रिसमस का बहुत बड़ा मेला लगाया जाता है। इस शहर में म्यूज़ियम भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। टूरिस्ट के लिहाज से स्पेन का सबसे बड़ा शहर बार्सिलोना सिटी है, जहाँ सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी रहते हैं। लेकिन यहाँ आपको एक अहम बात बताता चलूँ, स्पेन में दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है। इसलिए हम बार्सिलोना में जाने से पहले इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों स्पेन में इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान आबाद हैं। दोस्तों सल्तनत उस्मानिया के बारे में सबसे ज़्यादा बताया जाता है, जिन्होंने 600 साल हुकूमत की। लेकिन स्पेन के बारे में बहुत कम बात की जाती है, जहां मुसलमानों ने 800 साल हुकूमत की थी। स्पेन के इस हिस्से को उंदलस कहा जाता है, जहां आज भी मुसलमानों की तारीख और उन पर होने वाले जुल्म की दास्तानें इनकी दीवारों में जिंदा हैं। चलें अब आपको उंदलस का इलाका दिखाते हैं और साथ साथ तारीख जानने की भी कोशिश करते हैं। इस इलाके में 3 बड़े अहम शहर हैं, सेवियल, कार्डोबा और ग्रनाडा। ये बात है 711 ईस्वी की। उस दौर में इस इलाके में ना तो तरक्की थी, ना ही तालीम, बल्कि गंदगी और अंधेरों में डूबा हुआ इलाका था। लेकिन 711 ईस्वी में स्पेन के साहिलों पर एक अजनबी आया। इस नौजवान का नाम कमांडर तारक बिन ज़ियाद था। ये अफ्रीका के साहिल से 12,000 लश्कर के साथ समुंदर को पार करके उंदलस के साहिल पर पहुंचे थे। तारक बिन ज़ियाद का ताल्लुक बर्बर नस्ल से था। तारक बिन ज़ियाद ने ऐसा फैसला किया जो तारीख में शायद किसी ने नहीं किया। तारक बिन ज़ियाद ने हुक्म दिया कि जिन कश्तियों में हम आए हैं इन्हें जला दो, ताकि अब तो यहाँ उंदलस फतह होगा या हम शहीद होंगे। दोस्तों इस दौर में यूरोप में लंदन और पेरिस की गलियाँ ऐसी गंदी थीं जहाँ सिर्फ कीचड़ हुआ करता था। इस दौर को यूरोप का डार्क एजिस कहा जाता है। इस दौर में जब तारक बिन ज़ियाद ने कुर्तबा को फतह किया तो पूरे यूरोप में ये सबसे अलग शहर था, जहाँ पक्की सड़कें, तालीम, सफाई सुथराई, मतलब आप कह सकते हैं कि कुर्तबा के मुसलमानों ने ही यूरोप को तरक्की और साफ़ सुथरा रहना सिखाया था। इस जगह 700 हमाम थे और अस्पतालों में मुफ्त इलाज था। सबसे बढ़कर यहाँ इल्म था। कुर्तबा की लाइब्रेरी में 4 लाख किताबें मौजूद थीं। ये लाइब्रेरी आज भी कुर्तबा में मौजूद है। दोस्तों कार्डोबा को ही कुर्तबा कहा जाता है। यहाँ अबू अल कासिम अल जोहरी जैसे सर्जन थे, जो उस दौर में भी ऑपरेशन करते थे। स्पेन के इस हिस्से में मराकश से आकर मुसलमान आबाद हुए थे। कुर्तबा शहर में आज भी एक तारीखी मस्जिद मौजूद है, जिसे मस्जिद कुर्तबा कहा जाता है। इसकी टिकट 13 यूरो की है। क्या आप जानते हैं, इस मस्जिद के अंदर के डिज़ाइन को देखकर ही मस्जिद नबवी का डिज़ाइन तैयार किया गया था। जो भी इस शहर में आता है इसका विज़िट ज़रूर करता है। लेकिन इस मस्जिद से इस्लामिक आर्ट को ख़त्म करके चर्च की शक्ल दी जा रही है। इस जगह इल्लामा इकबाल भी आए थे, जिन्होंने यहाँ नमाज अदा की थी। दोस्तों कुर्तबा से रोशनी जो पूरी दुनिया को रोशन कर रही थी, उसे किसने बुझाया? 800 साल तक यहाँ मुसलमानों की हुकूमत थी, लेकिन अचानक से पूरा स्पेन मुसलमानों के हाथ से निकल गया। इस सल्तनत का आगाज़ कुर्तबा शहर में हुआ था।
और सल्तनत का अख्ताम गरनाता में हुआ। चले अब चलते हैं गरनाता सिटी और देखते हैं कैसे मुसलमानों की 800 साला हुकूमत ख़त्म हुई। आखिरी दौर के मुसलमानों के बादशाह दी पार्टी किंग्स थे, मतलब अयाशियों में डूबे हुए बादशाह थे। गरनाता में ही मुसलमानों का आखिरी किला था जिसका नाम अलहमरा है। ये किला आज भी मौजूद है। बड़ी तादाद में टूरिस्ट इस किले को देखने के लिए आते हैं। दोस्तों, मुसलमानों के आखिरी दौर में दो अहम शख्सियात थीं, फ्रेडिट और इज़ाबेल, जिन्होंने आपस में शादी की और इस शादी का मकसद सिर्फ मुसलमानों की सल्तनत को ख़त्म करना था। गरनाता शहर का अनाज बंद कर दिया गया। पूरे शहर को चारों इतराफ से सलीबियों ने गिराव कर दिया, लेकिन अलहमरा के महल में एक मुसलमान ही अपनी सल्तनत का सौदा कर रहा था, और वो था सुल्तान अबू अब्दुल्ला, जिसने अपनी जान के बदले पूरे शहर को फ्रेडिनेट और इज़ाबेल के हवाले कर दिया और रातों रात शहर छोड़कर भाग गया। लोगों को तब पता चला जब सुबह हुई तो फजर की अजान की बजाय चर्च के घंटे बज रहे थे। मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा की गई। लोगों को सूअर और कुत्ते का गोश्त खाने पर मजबूर किया गया। बड़ी तादाद में लोग ये इलाका छोड़कर मराकश आ गए और आज भी इनके घरों से कुरानी अवराक और सामान ज़मीन के अंदर से निकलता है। और इस तरह 1491 में 800 साला मुसलमानों की सल्तनत ख़त्म हो गई। सेवियर सिटी भी मुसलमानों के पास था। यहाँ आज भी इस्लामिक आर्ट आपको नज़र आएगा। प्लाजा दा अस्पाना इस शहर की सबसे फेमस जगह है। चले यहाँ से बैठते हैं ट्रेन पर और चलते हैं बार्सिलोना, जहाँ इंडियन और पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा रहते हैं। ये शहर बहिरा रूम के किनारे वाक़या है। इसके साहिल समुंदर के इलाके बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन बीचेस पर फहाशी भी बहुत ज़्यादा है। बार्सिलोना शहर भी आपको साफ़ सुथरा नज़र आएगा। दोस्तों, ये इस शहर की सबसे फेमस इमारत है। इसका नाम बेलिस्का दी सग्राडा फैमिलिया है। इस चर्च का डिज़ाइन दुनिया के तमाम चर्चिस से मुनफरिद है। इसकी खास बात यह है कि इसे 1882 में शुरू किया और अभी तक इसकी कंस्ट्रक्शन जारी है। इसको अगर आप करीब से देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे मोम पिघल रही हो। इसके अंदर जाने की टिकट 26 यूरो की है। इस चर्च के करीब ही गोथी क्वार्टर के मोहल्ले हैं, जिसे भूतों का इलाका भी कहा जाता है। इन गलियों में भी टूरिस्ट घूमते हुए आपको नज़र आएंगे। ये इलाका स्पेन से अलग होना चाहता है और यहाँ के लोगों की ज़ुबान भी अलग है। दोस्तों, रात के वक्त पूरे शहर में भी आपको रौनक सबसे ज़्यादा नज़र आएगी। पाकिस्तानियों की भी यहाँ दुकानें मौजूद हैं और हलाल फूड भी आसानी से मिल जाता है। इस शहर में स्पेन की सबसे फेमस पोर्ट भी मौजूद है। बार्सिलोना के राइवल के इलाके में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी आबाद हैं। दोस्तों, स्पेन का लिटरेसी रेट 98% के करीब है और इस मुल्क में अगर आप पढ़ने के लिए आना चाहते हैं तो यहाँ यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस 4000 यूरो से 8000 यूरो के करीब है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।